जो वो अलग पढ़े ना फिजिक्स वाला, वो उसका भी मैंने वीडियो देखा है। वो बच्चों के साथ कितना मतलब फ्रैंक है, उनको कितने इंस्पायर कर रहा है, तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। मैंने हाथ में हमेशा कलम रखा है, अपने छोटे भाइयों को, अपने हमसाया के बच्चों को मैं उस वक्त पढ़ाता था। اور یہ بھی میں نے سنا آپ سے ابھی کہ آپ پہلے یتیم ہو گئے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر سے والد محترم کا سایہ پہلے ہی اٹھا لیا تھا. کس طریقے سے آپ کے لیے چیلنجنگ تھا؟ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانی جنگ میں، وہ طفل کیا گریں جو گھٹنوں کے بل چلے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کراؤن اور میں ہوں آپ کے ساتھ منظور ڈار. ناظرین محترم، آج جو کہانی آپ تک ہم پہنچانے جا رہے ہیں، اس کہانی کو سن کر اور دیکھ کر یقینی طور پر آپ کا جو خون ہے وہ بھی رگوں میں دور دور کرنا شروع کرے گا. ہم اس وقت موجود ہیں شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ کے ایک دور دراز علاقے حاجن کے کاٹھ پورہ میں، جہاں پر ہم آپ کو ایک ایسے استاد کے ساتھ روبرو کرنا چاہتے ہیں جس استاد کی تگدو محنت ہمت دیکھ کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے. جی ہاں، جو استاد ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ استاد جو ہے جسمانی طور پر ناخیز ہے، لیکن ان کے ارادے، ان کی محنت، ان کا جذبہ کبھی بھی پس نہیں ہوا. یہ اپنے ارادے، جذبے، محنت، تقدوں کو آگے بڑھاتے رہے، ہمت سے آگے بڑھتے رہے، اور آج ان کے پاس اپنا سکول ہے جس میں یہ بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں. یہ ایسے استاد کے لیے یقینی طور پر ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ استاد جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، مشتاق صاحب ان کا نام ہے، وہ چل نہیں سکتے ہیں. چھوٹی ہی عمر میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، جس وقت یہ 4th کلاس کے طالب علم تھے، اور اس کے بعد انہوں نے کیسے یہ محنت، تگدو، لگن کو آگے بڑھایا، اور آج ماشاءاللہ ان کے پاس یہ سکول اپنا ہے اور خود بچوں کو تعلیم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے انسٹیٹیوشن میں بچے بھی پڑھ رہے ہیں. جب ہم نے ان سے آف دا ریکارڈ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میری کوشش ہے کہ تعلیم کو آسان کرنا اور تعلیم کو عام کرنا. یقینی طور پر آج اس استاد کی جو کہانی ہے نا، یا آپ سب کے لیے جو ہے ضروری، آپ سب جب یہ کہانی سنیں گے تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے. میرے پاس الفاظ کم پڑ رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے اس استاد کی محنت، تقدو، لگن کو بیان کروں. یقینی طور پر یہ تمام استادوں کے لیے ایک مثال ہے آج، خاص طور پر یہ بچوں کے لیے بھی مثال ہے، کیونکہ جب بچہ سکول میں پڑھتا ہے، کس انوائرمنٹ میں پڑھتا ہے، کس طریقے کا ماحول اس کو ملتا ہے، وہ ماحول بھی کہیں نہ کہیں بچے کو متاثر ہی کرتا ہے. اس سے جانیں گے مشتاق صاحب سے کہ کس طریقہ کا انہیں انوائرمنٹ ملا اور کب یہ اپنے چلنے کی جو ہمت ہے، اپنے چلنے کی قوت ہے، وہ کھو بیٹھے. مشتاق صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. مشتاق صاحب، یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں خود کے لیے، میرے لیے آج یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے موقع ملا آپ سے بات کرنے کا، اور مجھے موقع ملا کہ آپ کی جو تقدو، محنت، لگن ہے یہ باقی لوگوں تک پہنچانے کا. اور مشتاق صاحب، سب سے پہلے تھوڑا بہت اپنے بارے میں بتا دیجیے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے آشیانے کی طرف جا رہے ہیں، جس آشیانے کے آپ نے بچپن میں خواب دیکھے ہیں. میرا نام مشتاق احمد راتر ہے. میں یہاں اپنا سکول قائم کیا ہے. میرا یہی مقصد ہے کہ جو غریب بچے ہیں، جو زیادہ پیسے والے نہیں ہیں، جو بڑے بڑے سکولوں میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، پرائیویٹ تعلیم نہیں لے سکتے ہیں، اس لیے ان کے لیے میں نے یہ سکول کھولا ہے، تاکہ کوئی غریب بچہ آپ اپنے سکول کی طرف اس کو اندر ہرٹ نہیں رہے گا کہ میں نے کہیں اچھی تعلیم نہیں حاصل کی ہے. اس لیے میں نے اس کو. سر، آپ کے جذبے کو، آپ کی لگن کو ہم سلام کرتے ہیں. میں اس کو سلام کرتا ہوں. یقینی طور پر جو ابھی دیکھ رہے ہیں نا، وہ یقینی طور پر آپ کی محنت، تقدو کو دیکھ کر بھی آپ کو سلام کریں گے. چلیے آپ کی آشیانے کی طرف بڑھتے ہیں اور مزید بات چیت اندر جاری رکھتے ہیں. پہلے آپ سے جانیں گے، جب آپ بچپن سے ہی جسمانی طور پر آپ کے ساتھ یہ پرابلم تھی، یا پھر یہ اچانک سے ہو گئی؟ یہ اچانک سے ہو گئی ہے. میں 9 سال کا تھا اس وقت.
तो मैं पढ़ रहा था 4th क्लास में। 4th क्लास में ही थोड़ा चोट होने की वजह से मेरी टांगें जो है बेकार हो गई, मैं नहीं चल नहीं पा रहा है, इनमें वीकनेस आ गई है, हमेशा दर्द रहता था। लेकिन फिर 1 साल तक मैं ऐसी ज़्यादा बीमार रहा। 1 साल के बाद मेरे फिर हो गए 5-7 साल। 7 साल के बाद मेरे भाई ने मेरे लिए ये साइकिल लाया है दिल्ली से। फिर मैं दोबारा स्कूल गया तो दोबारा स्कूल में मेहनत से पढ़ा। आपको भाई ने साइकिल लाया, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से कोई साइकिल या कोई व्हील चेयर नहीं मिली? उस टाइम नहीं मिलते थे लेकिन बाद में मिल गई। आज है आपके पास? यही है आज मेरे पास। आज के जदीद तौर वक्त में भी आपके पास वो वाली साइकिल नहीं है? स्कूटी भी मिल गई है, पिछले साल 2020 में मिल गई है। 2020 में, तब से पहले नहीं मिलती थी लेकिन 2020 में मिल गई। मुश्ताक साहब, फिर आपने ये भी बताया कि लंबे अरसे तक आप तालीम के निज़ाम से वाबस्ता नहीं रहे, बीमार रहे, तो इस वक्त में, और ये भी मैंने सुना आपसे अभी कि आप पहले यतीम हो गए थे क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके सर से वालिद मोहतरम का साया पहले ही उठा लिया था। किस तरीके से आपके लिए चैलेंजिंग था? तो बहुत ही चैलेंजिंग था। कैसे, आपको पता ही होगा कि एक्चुअल इंसान की जो बेसिक नीड होती है वो फाइनेंशियल नीड होती है। ऐसे उसमें तो बहुत ही तकलीफ आते थे लेकिन मैनेज हुआ अल्लाह ताला के फजल करम से, फिर आगे चलते रहे। तो माँ का बहुत बड़ा साथ रहा, आपका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा? माँ ही ने किया सब कुछ। हाँ, उसी ने जब पहले भी पाला है फिर दोबारा पाला है, उसी तरह जैसे तरह छोटे बच्चे को माँ पालती है उसी तरह फिर से पाला है। तो फिर 7 साल का लगभग अरसा रहा जिस अरसे में आप स्कूल नहीं जा पाए, तो लंबा अरसा था, किताबों से आपका वाबस्ता नहीं रहा था, जिस्मानी तौर पर आप चल नहीं सकते थे, आपके इरादे पस हो गए थे। इरादे तो पस्त को नहीं होने दिया है, वो उनको कायम रखा है। मैंने हाथ में हमेशा कलम रखा है, अपने छोटे भाइयों को, अपने हमसाया के बच्चों को मैं उस वक्त पढ़ाता था, उसी बेस पे जो मैंने 4th में सीखा था। आप बचपन से ही बच्चों को पढ़ाते थे? आप बचपन से ज़हीन थे मुश्ताक साहब? सर, आप बहुत ज़हीन थे बचपन से। हो सकता है। तो फिर मैं दोबारा स्कूल गया है। वहाँ हर एक स्कूल में जब गए तो वहाँ टीचरों ने भी बहुत रिस्पेक्ट दिए, जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते थे वो भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इस वजह से कि बच्चों ने कभी आपको चिढ़ाया या कुछ ऐसा स्कूल में? नहीं, कभी नहीं है। हर स्कूल में बच्चों ने मुझे इतना इज्जत दी कि मैं कह नहीं पाता हूँ। बहुत इज्जत हर स्कूल में। तो स्कूल में कोई दोस्त बना था आपको उन दिनों? बहुत से दोस्त थे, अभी भी आपके साथ आते रहते हैं, बात? जो मुझे हर कंट्री में दोस्त मिले हैं वो अभी भी है मेरे साथ। अक्सर कहा जाता है कि दोस्त फिर बदल जाते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ, बदले दोस्त? इस तरह नहीं, जैसे मेरे साथ वो वहाँ थे, हर कंट्री में थे, वो मेरे साथ वहाँ ट्रीट करते हैं, वो आज भी ऐसे ही है। कहीं बाज़ार में मिलते हैं मुझे गले लगाते हैं, आज भी चूमते हैं, गले लगाते हैं। जो भी दोस्त मुझे मिलता है, सदरकोट का है, हाजिन के है जो दोस्त हैं, सब गले लगते हैं, वहीं पे चूमते हैं। ऐसे ही हम दोनों ऐसे ही बहुत मोहब्बत करते हैं, तभी आज भी वो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो फिर किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया, क्योंकि 7 साल तक आप पढ़ाई के निज़ाम से वाबस्ता नहीं रहे, उसके बाद फिर से आपने स्कूल का दरवाज़ा देखा, स्कूल गए तो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यूसली रखा, तो क्या क्या मराहल आए आगे, वो भी प्लीज़ बताइएगा। बस मुझे समझ सकता हूँ आपके लिए ये बोलना आसान नहीं है, क्योंकि जब भी आप उस दौर में चले जाते हैं, वापस उसको इमेजिन करते हैं, उसको फील करते हैं, तो आपको वो ज़माना याद आता होगा, आपके मुश्किल वक्त याद आते होंगे, क्योंकि मुझे लगता है आपकी आंखों में भी थोड़े से आंसू आ रहे हैं। वो वक्त तो बहुत ही कठिन भी था, लेकिन मैंने एंजॉय किया है उसको। मैंने एंजॉय किया उनको, जो शक्तियाँ थे ना, उन शक्तियों को मैंने एंजॉय किया है, अपने ऊपर बारी नहीं होने दिया है। इसलिए मैं आगे चल पड़ा, इसलिए आगे पर चल पड़ा। मैंने उस शक्तियाँ ऐसे बर्दाश्त की, तो जैसे कि मैंने कहा ना, मैंने उनको एंजॉय किया है, शक्तियों को एंजॉय, प्रॉब्लम्स को एंजॉय किया। हाँ, मैंने एंजॉय किया उनको। हिम्मत नहीं हारी। सर, आपके जज्बे को सलाम। शक्तियाँ बहुत आई है। मैंने बोला, जैसे कहते हैं हाँ पहाड़ पे पानी चढ़ा है, उससे भी ज़्यादा बदतर, लेकिन मैंने सबको एंजॉय किया है, हर एक शक्ति को मैंने एंजॉय किया। तो अभी फिर आपने कहाँ तक पढ़ा सर, कहाँ तक अपनी क्वालिफिकेशन को पहुँचाया?
हाँ यूनिवर्सिटी में बीएड किया है डिस्टेंस मोड में, फिर ग्रेजुएशन के बाद फिर एमएड किया वहाँ यूनिवर्सिटी में, कश्मीर यूनिवर्सिटी में किया एमएड। तो उसके बाद स्कूल लगाया तो इसी पे अब तक स्कूल पे ही। तो आरटी पोस्ट आपने छोड़ दिया? हाँ आरटी पोस्ट मैंने 2009 में छोड़ दिया। उस वक्त थोड़ा बहुत मुझे मेरे भाई को लगा कि उधर नहीं चढ़ पाएंगे, वो स्कूल थोड़ा ऊपर था, सीढ़ियाँ नीचे बहुत ख़राब थी, तो आप उधर नहीं जा सकते हो, लेकिन आप घर पे ही जाओ रहो तो पढ़ो। फिर ये स्कूल का कंसेप्ट कैसे आया सर? अचानक है। नाम क्या रखा है सर? एक्चुअल में पढ़ाने का शौकीन था, बस सिर्फ पढ़ाने का शौकीन था, इसलिए स्कूल लगाया। सोचा कि बच्चों को पढ़ाएंगे, हम साया बच्चों को उनको पढ़ाए। पहले मैं घर में उनको पढ़ाता था फ्री, मैं फ्री ही पढ़ाता था। 10th मेरे पास आते थे बच्चे, मैं ग्रेजुएशन में भी उन बच्चों को जो मुझे एक क्लास नीचे होते थे, चाहे मैं सबको पढ़ाता था। मैंने टीडीसी के बच्चों को भी पढ़ाया है, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के उनको भी पढ़ाया। मैं इंग्लिश पढ़ाता था उनको, उस टाइम इंग्लिश पढ़ाता था, ग्रामर में पढ़ाता था, हर एक को यहाँ पे मैंने उस टाइम फ्री पढ़ाता है। लेकिन फिर अचानक स्कूल का कंसेप्ट आ गया तो लगाया स्कूल, तो माशाल्लाह अल्लाह की फजल से ही चल रहा था आज तक। तो अभी कितना स्टाफ है आपका सर? मेरे पास इस वक्त 3 पियान और 8 टीचर्स हैं, ऑलमोस्ट 11 बंदे। और रेंटेड पे है बिल्डिंग, उसको भी रेंट भी दे रहा हूँ। चलो माशाल्लाह। तो इस वक्त में, इस ज़माने में आपको अपनी मॉम ने साथ दिया, क्योंकि आप बचपन से फादर का साया नहीं था, तो मॉम को कितना क्रेडिट देना चाहेंगे आप? सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर बिल्कुल। उसने मुझे दोबारा ज़िंदगी दी ना, अल्लाह ने पहले तो दोबारा माँ ने पाला। सर आपको दुनिया की सबसे बेस्ट माँ से अल्लाह ताला ने नवाजा। बिल्कुल, यस सर, यस सर, यस सर। तो मुझे लगता है अब तक जितने भी लोगों से मिला हूँ, सबसे यूनिक, इम्प्रेसिव और मेरी ज़िंदगी में जो एक कहते हैं ना एक बदलाव लाने वाला लम्हा, वो मुझे लगता है कि आज का लम्हा था। और मैं खुद को समझता हूँ कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मुझे आपसे बात हो। ये ठीक है सर। हाँ, तो आगे आपका मिशन? खुश हुए आपसे बात करके। आगे आपका मिशन? आगे ऐसे मिशन हम इसको एजुकेशन माँ से यही मेरी कोशिश है कि लोगों तक एजुकेशन पहुँचे, ये एजुकेट हो जाए। क्योंकि हर मैं ये हमेशा बच्चों को भी बोलता है, बच्चों को ऐसे काउंसलिंग करनी चाहिए कि बच्चे आजकल मोबाइल से ज़्यादा वहाँ पे प्रोग्राम्स ठीक नहीं होते हैं, वो देखते हैं ये ड्रग्स वग्स गेम्स वेम्स टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं इधर उधर। ये ना कर जाए, क्योंकि ये पेरेंट्स से भी मैं यही गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को घर पे भी निगरानी करे। अगर वो बच्चों को वहाँ पे निगरानी करेंगे, ज़्यादा फ़ोनों के साथ छेड़ने मत दे। हाँ, खेलने से बच्चे अच्छे हो जाते हैं 1 घंटा 2 घंटा तक, लेकिन उनको सबसे पहले एक बात है बच्चों को देना है, वो है उनको तहज़ीब देना, बच्चों को एक मॉरलिटी देना है। मॉरलिटी वो घर में भी होनी चाहिए। हम भी यहाँ पे कोशिश करते हैं कि यहाँ बच्चों को मॉरलिटी मिल जाए, वो एक महज़िब इंसान बन जाए, आगे कुछ करके। जो मैं उनको हमेशा मिसाल देता हूँ, आप मुझे देखो, मेरे जैसे कितने आजकल सड़कों पे भीख मांगते हैं, आप मुझे देखो, मैं कितनों को यहाँ रोज़गार देता हूँ। तो ये अपने अंदर यही मिसाल कायम करो। ये तो एक माजूर है, हम तो हटे कटे हैं, हम तो अच्छे इधर उधर दौड़ने वाले हैं, हम क्यों नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए बच्चों को मैं यहाँ पे ऐसी काउंसलिंग करता हूँ। लेकिन ये हर एक को, पेरेंट्स को भी ऐसे करना चाहिए। मेरी बेस्ट मॉम है, उसने मुझे इंस्पायर किया उस टाइम जब उसने मुझे बोला है कि आपको ऐसे क्यों देखते हैं इन बच्चों को, ऐसे ये उधर घूमते हैं इधर घूमते, आप सोचते हैं हम कुछ नहीं है, आप ही इनसे सबसे बेटर लग रहे हैं, मुझे बेटर लग रहे हो आप इन बच्चों से, ये मत रखो दिमाग में, फिर नहीं पढ़ पाओगे। तो मैंने दिमाग से निकाल दिया उस टाइम। फिर तो आपके लिए वो एक जो कहेंगे कि आपकी लाइफ चेंजिंग या टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का वो। तो उस मैम को मैं क्या बोलूँगा, कितना मेरी दिल में उसकी रिस्पेक्ट है, आज भी उसकी याद आती है। बहुत उसकी याद आती है। फिर 10th में मुझे पढ़ाया उसने, मेरी क्या बोलूँगा, उसने मुझे बहुत इनकरेज किया उस टाइम। आज अगर मैं हूँ तो उसकी थोड़ा बातों की, उसकी जो उसने इनकरेज किया उस टाइम, उससे मैं हूँ।
कितना अरसा हो गया आपने ये स्कूल खोया और इसका कंसेप्ट किसने दिया आपको कि आपको एक स्कूल शुरू करना चाहिए? बचपन से ही मुझे पढ़ाने का शौक़ था। मैं बस मुझे खुशी होती है जब मैं किसी को पढ़ाता था। बच्चे आते थे गाँव के, उनको मैं फ्री भी पढ़ाता था। कोई कुछ देता था, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता था, मुझे पैसे दो। मैंने फ्री भी पढ़ा दिया बहुत से बच्चों को। फिर जब मैं ये ग्रेजुएशन ख़त्म की, बीएड किया था, एक स्कूल में गया था, वहाँ मैंने पढ़ाया। जब मैंने वहाँ पे पढ़ाया तो फिर एक टाइम थोड़ा वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा है कि हम भी थोड़ा सा छोटा मोटा कुछ करेंगे, कुछ बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने ये बिल्डिंग रेंट पे ले ली है। तो बच्चों को मैंने काउंसलिंग की है, कुछ पेरेंट्स के, वो आ गए, उन्होंने बच्चे दे दिए। उन्होंने बोला आप, मैं पहले से ही पढ़ाता था एक्चुअली, तो उनको पता था ये पढ़ाता है, तो उन्होंने बच्चे यहाँ भेजे हैं, तो यहाँ एडमिशन करवाया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आज तक ये चलता रहता है। तो चलो मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह करे कि आपके इंस्टीट्यूशन को तरक्की मिले, आपके बच्चे जो है वो होनहार तालिब इल्म बने, और यकीनी तौर पर जिस तरह आपने स्ट्रगल को देखा है, और मैं समझता हूँ कि ये बच्चे भी फ़ख्र वाले बच्चे हैं, किस्मत वाले बच्चे हैं कि जिन्हें आप जैसा टीचर मिला। तो इनको भी, हाँ, इनको भी खुशी हो रही है कि मैं इनके साथ फ्रेंडली है, इनको हाथ पता है ये मेरे साथ फ्रेंडली है, मैं इनके साथ फ्रेंडली है बच्चे। तो मेरे साथ फ्रेंडली है। मैं एक बात बताता हूँ ना, मैंने देखा है ना, जो वो अलग पढ़े है ना फिजिक्स वाला, वो उसका भी मैंने वीडियो देखा है। वो बच्चों के साथ कितना मतलब फ्रैंक है, उनको कितने इंस्पायर कर रहा है। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ। बच्चों कैसा मज़ा आता है सर के साथ? हाँ, कितना? बहुत अच्छा। अपनी घर की तमाम बातें सर के साथ शेयर करते हो? हाँ, दोस्त की तरह। सबसे ज्यादा मजा आप में से किसको आता है, मुझे बता। सर के पास। आप में से सबसे ज्यादा मजा किसको आता है सर के पास? आप में से सबसे ज्यादा? आपको? आपको नहीं आता? यस सर। हाँ, सबसे ज्यादा बताओ। सबसे। किसको? सबको। सबको। हाँ, जब आप स्कूल नहीं आते तो याद आती है सर की? यस सर। कितनी? बहुत। कहाँ पे आती है याद? घर पे। घर पे आती है या दिल में आती है? दिल में। दिल में आती है। आपका दिल किधर है? हाँ, यहाँ पे सर की याद आती है। हर कोई बात सर के साथ शेयर करते हो। घर पे बैठने का मन नहीं करता आपको? हाँ, हाँ, मजाक भी करते हो सर के साथ? डांट पड़ती है कभी कभी? डांट पड़ती है? कितनी? बहुत। हाँ, डांट पड़ते हुए डर होता है सर का? सर। तो आप में से आपको क्या बनना है? क्रिकेट लवर। हाँ, क्रिकेट में जाना चाहते हो आप? क्रिकेट प्रोफेसर। प्रोफेसर, माशाल्लाह। फुटबॉल। आप बच्चे? पायलट बनना चाहते हैं? हाँ, यस सर। तो सर से आप लेते हैं गाइडेंस? यस सर। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ कि आप सब बच्चों के लिए बड़े एजाज़ की खुशकिस्मती है कि आपको मुश्ताक सर जैसे सर मिले हैं। तो सर की बहुत कदर किया करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा सर मिला है। हाँ, अल्लाह आपको भी सलामत रखे और अपने अपने ख्वाबों में आपको जो है वो कामयाब करे। ठीक है, पढ़ो, आप कामयाब हो। सर, इस वक्त आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा महारत रखते हैं? आई थिंक एवरी सब्जेक्ट बच्चों को से पूछे। हर कोई बुक पढ़ाते हैं सर? यस सर। हर कोई सर। उनको जब मैं मैथ पढ़ाता हूँ उसमें बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है। ये अक्सर बोलते हैं, मैं मैथ टीचर को यहाँ लाता हूँ, ये बोलते हैं हम मैथ नहीं पढ़ेंगे, आप खुद पढ़ाओ, खुद ही पढ़ाओ मैथ में। ये 2-3 दिन पढ़े बहुत सारों के पास, महीना भी पढ़े, फिर बोलते हैं सर नहीं आप ही पढ़ाओ मैथ में। मज़ा आप ही के पास ज़्यादा आता है। सर, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस दौर से आप गुजरे होंगे उन दिनों लाठी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, टीचर्स का डर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को होता था। इस तरह बच्चे टीचर के सामने नहीं रह सकते थे। तो क्या लगता है कि वो डर उस वक्त का ठीक था, नहीं था, या जिस तरह छड़ी का इस्तेमाल किया जाता था वो ठीक था, नहीं था? क्या लगता है सर? देखिए, वो टाइम तो ऐसा था जो बच्चा इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट मतलब कुछ बच्चे गौर से सुनते थे टीचर्स को, उनको याद होता है, या उनको डांट नहीं पड़ती। जो बच्चे इधर उधर थोड़ा होते, फिर क्या रहता है, वो ठीक नहीं था। लेकिन बच्चे उससे छोड़ते थे, तालीम छोड़ते थे। जो मुझे लगता है कि मेरा एक कोई कभी जब यहाँ कोई आया है टीचर ऐसे बुलाया है
کشمیری میں بولتے ہیں ژےٚ چھِ شُرۍ کھٲلمٕتۍ نَکھَن ژٕ چھُنہٕ لورا وورا زانٛہہ آمٕژ یِم ٲسۍ وَنان ہے مُشتاق سَرَن چھِ نَکھَن کھٲلمٕتۍ شُرۍ ییٚتہِ ٲسۍ ہر کانٛہہ وَنان مگر ایکچولی میں اس کو پیار سے پیش آتا تھا. میں نے وہ فلم نہیں دیکھی تھی عامر خان کی, وہ تھی نا وہ تارے زمین پر, وہی ہے میں نے دیکھی نہیں. لیکن ایک دم یہاں ایک لڑکی آئی ہے میرے پاس پڑھنے آئی ہے, اس نے بولا ہے وہ 7, 8, 10 دن بعد سر آپ نے تارے زمین پہ دیکھی؟ میں نے نہیں دیکھی. آپ تو ایکچوئل اسی کی طرح ہے, تو آپ تو ایکچوئل اسی کی طرح ہے, آپ کو کس سے بچوں کو انسپائر کر رہے ہیں؟ تو وہ آپ وہ فلم دیکھو. پھر میں نے وہ فلم دیکھی, یہ تو ویسا ہی ہے. تو وہ میرے ذہن میں ہی وہ تھا, میں بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے پڑھا تھا بچوں. آج بھی وہی بچوں کو مطلب ڈر بھی میرا ہے, ڈر بھی میرا بہت ہے, لیکن بچے میرے ساتھ جب پڑھاتا ہوں نا تو ان کو میں ایسے ہی مطلب چنا وہ پلے ہوئے میتھڈ وہ میں نے ان کو پہلے سے ہی میرے ذہن میں تھا. البتہ ایک چیز میں نے نا جو ایجوکیشن ہے, میرا مقصد ہے ایجوکیشن کو آسان کرنا. آسان کرنا مطلب ایک غریب انسان وہ بھی اپنے بچے کو ایک اچھی تعلیم دینے کے لیے مطلب اس کو ارمان ہوتا تھا میں بچوں وہ بھی یہاں آ جائے آپ پڑھے یہاں پہ, کہ میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ایجوکیشن کو آسان بنائے, جیسے کہ اس الگ سر نے کی ہے, اس فزکس والا نے اس نے کیا. کیا میں نے دیکھا ہے کہ بچے جب وہاں جاتے ہیں ٹیوشن سینٹروں میں, وہاں کے 30,000 میں یا 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ وہاں پہ لیتے ہیں. لیکن اس نے کہ کتنا آسان کر دیا ایجوکیشن کو. وہی ذہن انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی کنٹری میں. اس نے ایجوکیشن اتنا ایزی کر دیا, آسان کر دیا کہ بچے گھر بیٹھ کے بھی پڑھتے ہیں. 2,000 4,000 6,000 میں وہ لیتے ہیں ایک سال کے لیے کتنے پڑھتے سر اس سے میں بہت انسپائر ہوں. اس سے میں بہت کیونکہ اس نے مجھے لگا بہت کچھ سوچا ہے بچوں کے لیے. ویسی ہی تھاٹ میری پہلی تھی, جب میں نے وہ دیکھا میں نے بولا اس کو بھی ایسا ہی تھاٹ, مجھے بھی ایسی تھی تھاٹ, لیکن اس سے میں بہت انسپائر ہوں. بچوں سر کے ساتھ مزہ آتا ہے؟ یس سر. چلو اللہ آپ سب کو کامیابی دے. چلیے سر آپ کا بہت بہت شکریہ, ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ہم بار بار اکثر و بیشتر ملاقات کرتے رہیں گے. آپ کی نصیحت آموز باتیں ہم اپنے ویورز تک پہنچاتے رہیں گے, اور یقینی طور پر امید ہے کہ آج جو لوگ بھی اپنے دل کو اپنے آپ کو کم سمجھتے تھے وہ آج مشتاق سر کی یہ کہانی مشتاق سر کو دیکھ کے ضروری طور پر متاثر ہوئے ہوں گے. مشتاق صاحب کے مطابق 4تھی کلاس کے یہ طالب علم تھے جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا, اور اس کے بعد لگ بھگ 7 سال تک یہ پڑھائی کے شعبے سے جو ہے یہ دور رہے, کیونکہ بہت زیادہ بیمار رہے. اور بیماری کی اس حالت میں پہلے ہی ان کے والد کا جو ان کے اوپر سایہ تھا وہ پہلے ہی اٹھ چکا تھا, یعنی یتیم تھے. اور یہی مشن لے کر میں آگے بڑھتا رہا, ہمت نہیں ہاری. تو آج مشتاق صاحب کو خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ وہ اس مقام پہ ہے, اور اس بات پہ انہیں فخر ہو رہا ہے, اور فخر پوری وادی کشمیر کے تمام لوگوں کو بھی ہوگا جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں. یقینی طور پر ہونا بھی چاہیے کہ مشتاق صاحب اس وقت اپنے ساتھ ساتھ کئی سارے سٹاف کو بھی چلا رہا ہے, ایک بڑا خواب لے کے سامنے آیا. اور آپ بھی ان کے والد محترم کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت کرے, قبر پرنور کرے, جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے. اور ان کی ماں جو ہے وہ بھی آج خوش ہے کیونکہ ان کا بچہ ایک انسٹیٹیوشن کا مالک ہے, ایک انسٹیٹیوشن کا پرنسپل ہے. اور سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ بچے کو ایک اچھے ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے جو اس بچے کو نکھار سکے, اس کو صحیح سے وہ شکل دے سکے تاکہ یہ بچہ جو ہے ایک اچھا سٹیزن, ایک اچھا انسان بن پائے. محسن میر کے ساتھ میں منظور ڈار, کشمیر کراؤن کے لیے.